Hi everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Jessica Singh and I'm a UPSC Civil Services aspirant preparing for my second attempt in 2027. So in today's video, I'm going to be giving you guys an update of day 2 of my show up challenge, and also today we are going to be active recalling or just studying or revising the topic of classical evolutionism, which is one of the theories in anthropology. So all of those who have anthropology optional, it will be great for you all. So stay tuned till the end and we are just going to be revising it through my notes. And yeah, that's it. So basically the updates for yesterday are, I had a very humbling day, I would say, because everything that I was trying to do, I was constantly failing at it. So there's this one thing about me that I just don't like wasting stuff. So yesterday I had like a bigger whitener tape, and in that the tape stopped working or something, so I was just trying to replace it or just use the tape inside of the bigger one into the smaller one, which was working fine. So I sat down to actually do it, and literally it took me 30 minutes. I was just so frustrated that I could not really do it, and I was like, I just threw it off because it was just so difficult to do it. And then I regretted that 30 minutes have been wasted. Jessica, what are you even doing? What are you even up to? And then after that I studied, and then I made the video as well. Literally, I'm telling you, I sat down to shoot my videos by 6:50 yesterday, 6:50 p.m., and it was 8 p.m. that I could not really shoot one video which was proper that I could post. So after that also I had some more what do you say, down the hill experiences. So basically after that I sat down to just fix my scrunchies. I just had like 4 or 5 scrunchies which were getting very loose, so I was like, okay, let's not waste it, let's try to fix it or something. I sat down to fix them. That also took me almost 30 minutes and I could not do anything. And this is the classic example of how you waste your time. But then I was just so upset by the whole day and by the whole scenario of yesterday. I was like giving up. I was like, bas ho gayi 2 ghante ki padhai aaj. Now let's just I'll study tomorrow. But then out of somewhere I just got some motivation and I thought ki yaar, कल से बेटर होना है, तो और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी है थोड़ी सी, तो आज थोड़ा सा और पुश कर लेते हैं. So I physically, like, I had to push myself to study, but then it was my ethics lecture that I had to take at night. So I slept at around 4 a.m. yesterday because I was just completing my lecture and all. I really like ethics ke lectures because my faculty is actually very nice, and he also tells, he's actually an officer, ex-officer. He used to work with the government of India, so he told us his experiences from Labasna and trekking and all of that, and it's just so fun to hear all of that. And honestly, I think I couldn't get better faculty. So yeah, so for yesterday the time was 4 hours and 53 minutes. Why is it not visible? Yeah, you guys can see 4 hours 53 minutes, 14th of July. So yeah, trust me, I've not even put a minute extra. That I have not wasted any time in all this while, and इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करी है. And yeah, today also I'll try to be better than yesterday. And yeah, that's how this challenge goes on. So for today we are going to be studying classical evolutionism. So let's get into the deep study mode that I like to have at this point. So yeah, let's go. Hello, welcome to my deep study mode. So that's how I usually study. And here's my register, and हम register से ही करेंगे because yesterday I planned that I would just put like a picture besides. So वो मुझे थोड़ा feasible नहीं लग रहा था idea. So we're gonna just do it from our register itself. And all the UPSC aspirants know why I have it here. इसमें कोई spelling error हो तो please excuse me for that. So yeah, let me just open my register. Okay, so
दिस इज़ हाउ माई नोट्स लुक लाइक। तो बस हम एक पेज ही रिवाइज़ करने वाले हैं क्योंकि अभी मैंने बस यही करा है. So we are going to be just revising this page in 5 minutes max. So yeah, let's get started. These are my notes for anthropology. So if any one of you wants to copy this, you guys can copy it as well side by side. But yeah, we're going to be just revising it. इसमें से ही वैसे तो मुझे सब याद है, but I'll try not to see this and just revise it. ठीक है. So the first things first, पहले क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म से पहले हमारे टीचर ने तो हमें पहले कुछ टर्म्स समझाई थी जो बेसिक टर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग दीज टर्म्स दैट वी हैव ओवर हियर. देयर आर 14 टर्म्स. फटाफट से इनको हम ओवरव्यू ले लेते हैं. सो बेसिकली फर्स्ट टर्म इज़ एवोल्यूशन, ग्रेजुअलिज्म एंड रेवोल्यूशन. तो पहले हम एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन में फ़र्क देखते हैं. एवोल्यूशन इज़ ग्रेजुअल चेंज इन समथिंग, थोड़ा 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 करके कुछ चेंज हो रहा है. वेयर एज रेवोल्यूशन इज लाइक एब्रप्ट चेंज इन समथिंग, एकदम से ही कुछ चेंज आ गया. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव ग्रेजुअलिज्म. ग्रेजुअलिज्म का मतलब होता है इंक्रीमेंटल चेंज, ऐसे 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 इंक्रीमेंटल चेंज, थोड़ा 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 बढ़ते जा रहा है. ठीक है. सेम उसमें सेम फ्रीक्वेंसी में भी, फ्रीक्वेंसी नहीं बोलेंगे बट लाइक सेम ऑर्डर में. नेक्स्ट इज प्रोग्रेस वर्सेस ग्रोथ. अब प्रोग्रेस और ग्रोथ में क्या फ़र्क है एग्जैक्टली? प्रोग्रेस एक डायरेक्शन में होती है, जिस डायरेक्शन में हम चाहते हैं. ग्रोथ इन वन डायरेक्शन वी कैन से. बट ग्रोथ हियर इज़ क्वांटिटेटिव चेंज इन एनी डायरेक्शन. किसी भी डायरेक्शन में ग्रोथ हो सकती है. जैसे हम कुछ आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो. जैसे मैं क्या एग्जांपल दूँ? आप इसमें किसी प्लांट का भी एग्जांपल ले सकते हो, किसी भी चीज़ का एग्जांपल ले सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव गॉट डार्विनिज्म. ये हम सब ने पढ़ा है अपने बायोलॉजी में. तो इसमें बस हमें यही जानना ज़रूरी है कि डार्विन की थ्योरी थी एंड वहाँ पे हम नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं, जिसमें कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो होता है वो एक्चुअली दैट वाज coined by Herbert Spencer. So next we've got social Darwinism. Now Darwinism, the theory of Darwinism, which is a scientific theory, when it is applied to the society, it is known as social Darwinism. और ये ऑगस्ट कॉम ने तो सोशल पॉजिटिविज्म दिया था. आई एम सो सॉरी. नेक्स्ट वी हैव पॉजिटिविज्म. पॉजिटिविज्म मतलब जैसे कि फिजिकल फिनोमेना जो हमारे आसपास होते हैं वो कुछ फिजिकल लॉज से गवर्नड होते हैं एंड वी कैन जस्ट स्टडी इट. वैसे ही अगर हम इसको सोसाइटी पे अप्लाई करें तो सोशल पॉजिटिविज्म ये बन जाता है, जिसमें कि ऑगस्ट कॉम्ट जो हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी, उन्होंने यही बोला कि अगर हम सोशल फिनोमेना को सोशल लॉज से देखेंगे तो मतलब बेसिकली सोसाइटी में भी कुछ ऐसे लॉज होते हैं जस्ट लाइक वी हैव इट इन साइंस. तो साइंस और सोशियोलॉजी का थोड़ा थोड़ा मिक्स दिख रहा है हमें यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट वीव गॉट साइकिक यूनिटी. साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड मतलब कि हम सब एक तरीके से ही सोचते हैं. ऐसे हम इसको ले सकते हैं कि कोई इंसान अगर किसी सर्टेन सिचुएशन में है और दूसरा इंसान सेम सिचुएशन में है तो शायद वो दोनों सिमिलर फ्रिक्वेंसीज पे ही सोच रहे हों. और ये आइडिया था एडोल्फ बास्टियन का. Now disclaimer, I am just a student and I am not here to teach. I'm just revising it with you all. If you guys think there's any mistake that I'm doing right here, please be kind enough to comment down below and yeah, just tell me where I'm going wrong. That's it. It can be something that I'm interpreting wrong. It can be something, it can be related to my concept as well. So I am literally saying that I'm not a teacher here. Please let me know in the comments down below if I do any mistake. So yeah. नेक्स्ट वी हैव गॉट द आइडिया ऑफ पैरेलल एवोल्यूशन. पैरेलल एवोल्यूशन हुई साइकिक यूनिटी की वजह से एंड दिस वाज बिकॉज बेसिकली पैरेलल एवोल्यूशन मतलब जो हमारा वर्ल्ड है उसमें अलग अलग जगहों पे मतलब ये क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट सोचते थे कि अलग अलग जगहों में हमारे वर्ल्ड में सेम मतलब सिंगल लाइन में जिसे हम यूनिलीनियर एवोल्यूशन भी कहते हैं, उसमें हमारे जो एवोल्यूशन हुई अलग अलग जगहों में एंड दिस वाज बिकॉज ऑफ द साइकिक यूनिटी दैट वी हैव, द साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड. नेक्स्ट वी गॉट कंपैरेटिव मेथड. अब कंपैरेटिव मेथड ये होता है कि हम दो अलग अलग सोसाइटीज़ को कंपेयर कर करके स्टडी करें और उसमें से जनरलाइजेशंस और यूनिवर्सलाइजेशंस हम उसको निकालें. ठीक है. नेक्स्ट वी गॉट यूनिलीनियर एवोल्यूशन. यूनिलीनियर एवोल्यूशन इज सैवेज टू बार्बरिक टू सिविलाइज्ड. दिस इज़ व्हाट क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट एक्चुअली बिलीव्ड इन कि जो हमारी सोसाइटी है वो ऐसे इस क्रम में या फिर इस ऑर्डर में ही डेवलप हुई है.
ये क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं थे. नेक्स्ट वी गॉट मल्टी लीनियर एवोल्यूशन. ये आइडिया है जूलियन स्टीवार्ट का, एंड इसमें इसने बोला है कि मल्टीपल लाइंस ऑफ एवोल्यूशन रही हैं. जैसे कि फॉरेस्ट इकोलॉजी में अपनी अलग एवोल्यूशन चल रही है, माउंटेन में अलग चल रही है, ओशंस में अलग चल रही है. तो वी हैव मल्टीपल लाइंस ऑफ एवोल्यूशन दैट आर देयर. Okay, so yeah, let's get started with the notes first. So we have the idea of evolution. एवोल्यूशन में हमने डिस्कस किया है कि दैट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंज, जिसमें कि एवोल्यूशन हमने देखा है कि यूनिलीनियर, यूनिवर्सल और मल्टीलीनियर होती है. यूनिलीनियर हमने डिस्कस किया है सैवेज टू बारबेरिक टू सिविलाइज्ड. फिर है यूनिवर्सल एवोल्यूशन. यूनिवर्सल एवोल्यूशन का आइडिया था लेस्ली वाइट का. इसमें इन्होंने बोला दैट एवोल्यूशन इज हैपनिंग ऑलमोस्ट एवरीवेयर. ओके, नेक्स्ट वी गॉट द आइडिया ऑफ मल्टीलीनियर एवोल्यूशन, जो कि जूलियन स्टीवार्ट का था, और वो हमने अभी डिस्कस किया कि मल्टीलीनियर एवोल्यूशन मतलब हर जगह अलग अलग तरीके से उनके तरीके से एवोल्यूशन हो रही है. नेक्स्ट वी गॉट दिस. सो बेसिकली यूनिवर्सल और मल्टीलीनियर को कंबाइन करके मार्शल सालेंस और ई सर्विस ने अपना खुद का आइडिया भी निकाला था, जो कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे थ्योरीज़ में, जो मुझे अभी आइडिया नहीं है ज़्यादा. सो यस, नेक्स्ट अगर हम क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म की बात करें, सो फॉर द इंट्रोडक्शन वी कैन से दैट इट वाज द अर्लीस्ट स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. इट एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड एंथ्रोपोलॉजी एज अ डिसिप्लिन एज वेल, बट इट सजेस्ट दैट सोसाइटीज़ एंड कल्चर्स एवरीवेयर इवॉल्व थ्रू फिक्स स्टेजेस. अब हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि हाँ, पुराने ज़माने के लोग थे तो हो सकता है इनका थोड़ा फिक्स्ड माइंडसेट रहा हो, या फिर कुछ मतलब ये लोग ना साइंस से ही सोसाइटी को भी डिराइव करने की कोशिश कर रहे थे कहीं ना कहीं. तो इसीलिए इन्होंने बोला कि सोसाइटी इस ही ऑर्डर में प्रोग्रेस की है. बट हाँ, आगे जाके द डिफ्यूजनिस्ट विल एक्चुअली प्रूव देम रॉन्ग एज वेल. सो विल सी दैट इन दिस वीडियो ओनली. नेक्स्ट वी हैव गॉट 3 सब स्कूल्स वर देयर, ब्रिटिश, अमेरिकन एंड जर्मन. इसको मैंने कैसे याद रखा है, इन सब के नेम्स यू कैन रिमेंबर इट बाय FM3 टाइलर. टाइलर तो यार सबको याद ही रहता है, ठीक है. सो F इज़ फॉर जेम्स फ्रेजर, M3 is Marriott, McLennan and Main, Henry Main, John McLennan and R.R. Marriott and E.B. Tyler. So that's how I learned these names. Next we've got American. American was L.H. Morgan, very easy. German sub school में थे Adolf Bastien और J.J. Butterfin. Okay. Next, it was a reaction against creationism and degenerationism. Creationism मतलब जो हमारे पहले के रिलीजियस थॉट्स होते थे कि भगवान ने ये सृष्टि को बनाया है, इसकी एवोल्यूशन एंड ऑल, ये सब भगवान पे छोड़े थे. बट देन दे वर एक्चुअली अगेंस्ट इट. दे वांटेड टू प्रूव कि ये हुआ कैसे है साइंटिफिकली. तो हम कुछ ऐसे सोच सकते हैं इसको. नेक्स्ट इज डीजेनरेशनिज्म. ये आइडिया थोड़ा सा बिब्लिकल थॉट है आई गेस. ये मैंने ChatGPT पे पढ़ा था दैट इट इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक अ बिब्लिकल थॉट, जिसमें ये बिलीव किया जाता है कि जो सोसाइटीज़ ने मॉरली कुछ गलत किया है, उसमें जो सिविलाइज्ड लोग हैं, जो उस सोसाइटी के सिविलाइज्ड लोग थे, वो प्रिमिटिव हो गए थे. मतलब जो यूनिलीनियर एवोल्यूशन थी वो उल्टी हो गई थी. पर वही चीज़ को ये लोग गलत प्रूफ करना चाहते थे, ठीक है. ये आइडिया था जोसेफ दे मास्टर का, ठीक है. नेक्स्ट द इन्फ्लुएंसेस. अब इन्फ्लुएंसेस समझने से पहले हमें ये 2 वर्ड्स बहुत अच्छे से समझने थे, जो हमने समझ भी लिए हैं. सो बेसिकली इन्फ्लुएंसेस थे सोशल पॉजिटिविज्म, जो ऑगस्ट कॉम्ट का था, विच एक्चुअली वांटेड टू अप्लाई सम लॉज, सम रूल्स इन द सोसाइटी, ताकि हम एक सोसाइटी को अच्छे से समझ पाएँ, लाइक साइंटिफिकली वो अंडरस्टैंड द सोसाइटी. सो इट वॉज बाय ऑगस्ट कॉम्ट, ठीक है. नेक्स्ट वी गॉट सोशल डार्विनिज्म. सोशल डार्विनिज्म मतलब डार्विन की थ्योरी हमने सोसाइटी पे लगा दी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सो द सोसाइटी विच इज़ द फिटेस्ट विल सर्वाइव फर्दर, ठीक है. बस यही था. फिर कुछ एनलाइटमेंट थिंकर्स जैसे मॉन्टेस्क्यू एंड इन सब ने इनको बहुत ज़्यादा प्रेरित या फिर मोटिवेट किया, ठीक है. नेक्स्ट कोलोनियलिज्म. कोलोनियलिज्म उस टाइम पे लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे सब ब्रिटिश हैं, राइट. सो कोलोनियलिज्म का बहुत बड़ा रोल था इसमें, कि जिसमें कि जो भी ब्रिटिश की कॉलोनीज़ थी उन लोगों को बेसिकली उनकी स्टडी करना उनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया था. जैसे इंडिया में भी आज ही मैं सोसाइटी में ही पढ़ रही थी दैट व्हेन द रिवोल्ट ऑफ 1857 अकर्ड, 1857 के रिवोल्ट से पहले द ब्रिटिश ओनली वांटेड टू एक्सट्रैक्ट वट एवर दे कुड, बट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 दे वर लाइक अब हमें इन लोगों को समझना पड़ेगा, इनकी सोसाइटी को समझना पड़ेगा. तो आई थिंक दैट ऑल्सो काइंड ऑफ मोटिवेटेड देम to actually go for these sort of studies and all. Next, voyagers and adventurers. ये तो हमें पता ही है, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा voyages, adventure और ये सब चल रहा था. जैसे कि अब वो तो आई गेस फ्रांस बोअस वाला तो अलग ही था. सो यस,
नेक्स्ट वी गॉट दी सेलियंट फीचर्स. नाउ सेलियंट फीचर्स में आता है 4 फीचर्स हैं, एंड इसमें 4 फीचर्स में से फर्स्ट फीचर इज़ एवोल्यूशन के ऊपर ही है. थोड़े से ये थोड़ा सा ना मैंने अच्छे से नहीं लिखा है, मुझे ऐसा लगता है. इसको मैं थोड़ा रीडू करूँगी, बट हाँ अभी समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं दैट एवोल्यूशन हमने 100 बार पढ़ लिया, दैट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंज. इट इज़ अ चेंज फ्रॉम होमोजेनस टू हेट्रोजेनस, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. होमोजेनस, अगर जैसे कोई सोसाइटी अगर होमोजेनस है, बहुत ज़्यादा उसमें इतने मतलब कैटेगरीज नहीं है, पर एवोल्यूशन मतलब कि कोई सिंपल चीज़ कॉम्प्लेक्स ही हो रही है बाद में, ये कहना चाह रहे थे. एंड इट इज़ अ ubiquitous प्रोसेस, दैट मीन्स इट कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. एवोल्यूशन इज हैपनिंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. ठीक है. नेक्स्ट, एवोल्यूशन हैपन्स इन अ यूनिलीनियर फैशन इन फिक्स्ड स्टेजेस ओनली, जो कि है सैवेज, बार्बरिक टू सिविलाइज्ड. और सिविलाइज इज एक्चुअली द एपिटमी ऑफ डेवलपमेंट. ओके. नेक्स्ट, इट टॉक्स अबाउट द साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, जो कि एडोल्फ बासियन का आइडिया था. एंड इसमें ये बोलते हैं कि जितने भी ऑल द ह्यूमन बींग्स हैव सिमिलर मेंटल कैपेसिटीज़. अगर सेम कंडीशन में तुम 2 इंसानों को छोड़ोगे तो उनकी सेम इन्वेंशन ही होगी. जैसे कि अगर कोई सर्दियों में रहता है फॉर एग्जांपल इन कनाडा, और अगर कोई सर्दियों में रहता है इन रशिया और समवेयर एल्स, तो उनका माइंडसेट एकदम सेम होगा, और उनके जो प्रोडक्ट्स होंगे जो यूज़ करते होंगे, या फिर उनका जो कल्चर होगा वो कहीं ना कहीं बहुत सिमिलर होगा. ऐसा ये कहना चाहता है, बिकॉज ऑफ साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड. ठीक है. नेक्स्ट वी गॉट कल्चरल सर्वाइवल्स. सर्वाइवल्स का मतलब होता है वेस्टेजेस, मतलब बची हुई चीज़ें जो हमारे पास्ट की होती हैं. सो बेसिकली कल्चरल सर्वाइवल्स E.B. टायलर ने बहुत अच्छे से स्टडी किया था, जिसमें कि हमारे अलग अलग लाइक कल्चर के बहुत अलग अलग सर्वाइवल्स होते हैं. जैसे कि कुछ चीज़ें जो अब हमें सेंस ही नहीं बनाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमें टचवुड कहना, या फिर कुछ सुपरस्टिशंस, या फिर देयर इज़ दिस सुपरस्टिशन ऑफ नॉट कटिंग योर नेल्स एट नाइट. सो मे बी इट कुड हैव बीन दैट in the earlier times there was not enough electricity, so cutting nails was not the right idea at night. So yeah, these are actually the vestiges or the survivals that we say. Next we have parallel evolution. So basically they say that parallel evolution occurred because of psychic unity. Parallel evolution, जैसे मैंने अभी रशिया कनाडा वाला एग्जांपल दिया था, कि अगर जो लोग सेम इन्वायरमेंट में रहते हैं उनकी कुछ कल्चरल इन्वेंशंस या कुछ कल्चरल चीज़ें सेम ही होती हैं. ठीक है. सो पर यहाँ पे ये डिफ्यूजन को उसमें नहीं लेते, कि हो सकता है कि वहाँ से कुछ लोग इधर आ गए हों, उन्होंने अपना आइडिया डिफ्यूज़ कर दिया. दे डू नॉट टेक इन अकाउंट डिफ्यूजन. ओके. नेक्स्ट वी हैव मेथड्स. नाउ मेथड्स आई हैव लर्न फ्रॉम दिस SC². वैसे तो ये बहुत ईजी भी है, आप 2-3 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा. सो बेसिकली इनके मेथड से ये दे वर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी डेटा, एंड दे डिड नॉट रियली गो फॉर एथनोग्राफिक रिसर्चेज. और इन सब के लिए इन्होंने ना ही कुछ एथनोग्राफीज खुद की बनाई. जैसे मैलिनोव्स्की एक्चुअली वेंट इनटू द फील्ड विद ट्रोब्री एंडर्स, एंड उसने अपना खुद का एक्सपीरियंस देखा, समझा सोसाइटी को एंड ऑल ऑफ दैट. बट दे वर वेरी मच रिलाइड ऑन द सेकेंडरी डेटा. मतलब इनको हम आर्म चेयर, टेबल चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी बोलते हैं शायद. आर्म चेयर बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है. टेबल चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट या कुछ ऐसे बोलते हैं. या नेक्स्ट वी हैव गॉट कंपैरेटिव मेथड. इन लोगों ने कंपैरेटिव मेथड को कहीं ना कहीं मतलब रीइग्नाइट तो नहीं बोलेंगे, लॉन्च किया सॉर्ट ऑफ, क्योंकि इधर से इन्होंने अपनी जनरलाइजेशंस निकालनी शुरू कर दी. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव गॉट कंजेक्चर्स. अब कंजेक्चर्स का मतलब होता है आइडिया लगाना, कि अच्छा ये लोग ऐसे करते हैं तो हो सकता है ये इस वजह से हो रहा हो. तो मतलब ये कोई 100% सही नहीं थे कि ये ही होगा, बट they were just making conjectures, which I think is not right at all. ठीक है. Next we have significance. Now for significance, वैसे the video is getting too long, but yeah, for significance we can say that it actually established anthropology as an academic discipline. अब लोग anthropology को independently पढ़ पा रहे थे इसके बाद, और उसको सेम पेडेस्टल ऑफ नेचुरल साइंस में रखा गया, कि मतलब नेचुरल साइंस जैसे ही इसको भी स्टडी किया जाए, जिसको हम पॉजिटिविज्म से भी समझ सकते हैं. तो बेसिकली ये वो है. और फिर इन्होंने इरेशनल लॉजिक ऑफ क्रिएशनिस्ट्स को भी रिजेक्ट किया है. एंड इट एस्टैब्लिश द कंपैरेटिव मेथड इन सोशल रिसर्च. कंपैरेटिव मेथड साइंस में होता था पहले, बट सोशल रिसर्च में कभी नहीं होता था. सो दे इंट्रोड्यूस्ड इट इनटू द सोशल रिसर्च. देन दे प्रमोटेड द यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर रिसर्च, कि जैसे कि ये सेकेंडरी डेटा पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे, तो ये स्टैटिस्टिक्स पे भी मतलब बहुत ज़्यादा
ऑफ कोर्स रिलाई करेंगे ना, क्योंकि देखेंगे कि अच्छा इधर के स्टार्ट्स कुछ बोलते हैं, इधर के स्टार्ट, तभी इन्होंने बोला है कि साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड है, या फिर यही सब चीज़ें, मतलब यूनिलीनियर फैशन में एवोल्यूशन हो रहा है एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। नेक्स्ट वी गॉट द क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म के लिए हमें ये स्कॉलर्स याद रखने हैं 1 2 3 4, फ्रांस बोआस, वेस्टरमार्क और रैटक्लिफ ब्राउन एंड मैलिनोस्की। ओके, सो फ्रांस बोआस के आइडियाज़ बहुत सिंपल है। पहले तो उन्होंने तीनों मेथड्स को ही क्रिटिसाइज़ किया है, ठीक है। अब जो उनके अलग पॉइंट्स हैं वो है कि ये बहुत एथनोसेंट्रिक थे और इग्नोर्ड डिफ्यूजन। लाइक ब्रो, व्हाई आर यू कॉलिंग ट्राइबल सोसाइटीज़ एज savage? They were not savage. Maybe they were more advanced than the civil societies that were present at that point of time. So they were very ethnocentric in their approach. Okay, next we've got they ignored diffusion, and यहीं से diffusion वाला स्कूल भी आता है, फ्रांस बोआस, ठीक है। नेक्स्ट we've got वेस्टरमार्क। वेस्टरमार्क ने मैरिजेस को स्टडी किया एंड मोनोगैमी को भी स्टडी किया इन सिंपल सोसाइटीज़। उन्होंने ये देखा कि सिंपल सोसाइटीज़ में भी मोनोगैमी होती है। अब बेसिकली अगर इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आ रहा तो इसका कॉन्टेक्स्ट यही है कि ये लोग समझते थे कि जो सिविलाइज सोसाइटी है वहीं पे मोनोगैमी होती है, और बाकी जो सोसाइटीज़ है वहाँ पे पॉलीगैमी या फिर पॉलीएंड्रस या फिर ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पे मल्टीपल स्पाउसेस होते हैं। बट ऐसा नहीं है, देर आर सिंपल सोसाइटीज़ वेयर वी हैव monogamy as well. So this is where Westermarck actually defined them. Next we got Ratcliffe Brown. Ratcliffe Brown actually studied the Ongees and he also said कि यहाँ पे भी मोनोगैमी पाई जाती है, Ongees of अंडमान एंड निकोबार. Next we got Malinowski. He criticized the idea of survivals. He said कि कोई भी चीज़ जिसमें, जैसे कि हमें पता है कि Malinowski was a functionalist, so he said कि किसी भी चीज़ जिसका कोई फंक्शन नहीं है इस लाइफ में वो चीज़ सर्वाइव कर ही नहीं सकती है। सो बेसिकली सर्वाइवल्स का उसने आइडिया ही रिजेक्ट कर दिया है पूरा का पूरा। देन वी गॉट फंक्शनलेस ट्रेट्स डोंट सर्वाइव। अब अगर हमें इसके कंक्लूजन में कुछ लिखना है तो हम यहाँ पे हम लेस्ली वाइट और नियो एवोल्यूशनिस्ट को भी ला सकते हैं, जो कि है लेस्ली वाइट, गॉर्डन चाइल्ड, जुलियन स्टीवार्ट, मार्शल सालेंस एंड ई सर्विस, ठीक है। सो बेसिकली लेस्ली वाइट ऑल्सो सेड, लेस्ली वाइट कौन? Leslie White is the one who gave the idea of universal evolution. She said that the evolutionists, classical evolutionists, were not wrong. It was just that they lacked evidence. So yeah, it's a 22-minute long video, and we have revised the whole classical evolutionism till here. And yeah, if you like this video, please give it a thumbs up and let me know in the comments down below if I should continue with this. I think I would go for some shorter topics because it took quite a while to just explain all of this. And yeah, I'll see you in the next video. Bye bye for now.